चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यहि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिजितराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनो भिर्वसेमहि देवहितुं जरा। कमलाबेन त्र्यंबकलाल चुनीलाल रूपारेलिया ठक्कर परिवार मुख्य मनोरथी बन्या। श्री वेपरी सत्संग मंडल तरफथी श्री भागवत कथाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શ્રી વેપરી મંડળની સર્વે બહેનોએ ફૂલ લઈને ફૂલની પાકડી આપી પોતાના તરફથી સાથે આપીને આ શ્રીમદ ભાગવત કથા સપ્તાહને દીપાવ્યો છે। બધા વૈષ્ણવ પરિવાર તરફથી અમે મહેશ્વરી સત્સંગ સમિતિ તરફથી કંઈ ને કંઈ સેવાનું આયોજન થયું છે, જે ઘણા હર્ષની વાત છે। સ્વર્ગીય હંસાબેન જસાપરા જે આ મંડળમાં કાર્યરત હતા તેમની યાદ અત્યારે બહુ જ યાદ આવે છે, કારણ કે 2008માં હંસાબેન સાથે અમે બધા ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવાનું વિચાર્યું હતું, પરંતુ શ્રી ઠાકોરજીની ઈચ્છા અમારી ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરી છે। આજે અમારા ધન્ય ભાગ અને ધન્ય ઘડી છે કે શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળમાં આ ભવ્ય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન થયું છે। શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળ 26 વર્ષથી કાર્યરત છે। બધા વૈષ્ણવ બહેનોને આ સહકારથી આ મંડળ આગળ ને આગળ વધતું રહે છે। મંડળ પર શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમને મહારાણી અને શ્રી વલ્લભની કૃપા સદૈવ વરસતી રહે એ જ પ્રાર્થના। જ્યારે પણ વૈષ્ણવને ઘરે શ્રી યમુનાજીના પાઠનું આયોજન કરવામાં આવે ત્યારે બપોરે 1:30 વાગે પણ બસમાં નીકળીને વૈષ્ણવને ઘરે પહોંચીને શ્રી યમુનાષ્ટકના પાઠ કરીને ભજન આરતીનું ગાન કરીએ છીએ। શ્રી દિલીપભાઈ તથા સવિતાબેનનો પૂરો સાથ સહકાર મળ્યો છે। 6 મહિનાથી શ્રીમદ ભાગવતની તૈયારી શરૂ થઈ રહી છે। મહેશ્વરી ભવન બુકિંગ, વિનોદ કેટરર્સનું સાથે મીટિંગ, પત્રિકા છપાવવાનું આયોજન, કેમેરામેનની વ્યવસ્થા, બધા સ્ટાફની વ્યવસ્થા, હેમંતભાઈના અતિથિ બધા પૂરા પરિવાર માટે બધી વ્યવસ્થા, શાસ્ત્રીજી અને સાથે આવેલા તેમના સાથીદારો માટેની વ્યવસ્થા, આમ કહો કે પહેલેથી છેલ્લે સુધીની બધી જ વ્યવસ્થા શ્રી દિલીપભાઈ અને સવિતાબેનને કરીએ છીએ। આ મંડળ તેઓ બંનેને ખૂબ આભારી છે। અમે શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળ તરફથી હું તેઓનો ખૂબ આભાર માનું છું। ભવિષ્યમાં આવા સુંદર આયોજન થતા રહે અને એમનો સાથ સહકાર મળતો રહે। વેણીમાસી, સવિતાબેન, પ્રતિમાબેન બોસમિયા, જસનાબેન ગણાત્રા, તૃપ્તિબેન મોતીપરા, દિવ્યાબેન રાજાણી તથા શશિકલાબેન સોની મારી સાથે પહેલેથી જ કાર્યરત હતા। 2013માં રશ્મિબેન દેસાઈ, શ્રદ્ધાબેન, ગીતાબેન ભાઠા, ઉષાબેન ભાઠા, રૂપાબેન પરીખ, અલ્પાબેન મહેતા વગેરે જોડાયા। ત્યારબાદ નિશાબેન તન્ના અને ભાવનાબેન અંબાણી પણ જોડાયા। શ્રીમતી જ્યોતિબેન સોનીના માર્ગદર્શન હેઠળ દરરોજની ફૂલની માળાનું સુંદર આયોજન થયું। જ્યોતિબેનનો ખૂબ આભાર અને જ્યોતિબેન ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો તે માટે મંડળ વતી હું તેનો ખૂબ આભાર માનું છું। શ્રી ઠાકોરજી પાસે એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે બધા માળાના મોતીની જેમ સાથે પોરવેલા રહે અને સત્કર્મ કરતા રહીએ। જય શ્રી કૃષ્ણ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बोल रही कृष्णा अमृत पान करवानो अनुपम अवसर मळ्यो छे। व्यासपीठ पर विराजमान पुष्टिमार्ग के परम विद्वान श्री चंदन कृष्ण शास्त्री जी पोतानी ओजस्वी वाणी में आपने खेची रह्या छे। वर्तमान में बेठकजीनी सेवा में भारतीय तत्वदर्शन अभ्यास करीने श्रीमद भागवत कथा, श्री राम कथा तेमज श्री वल्लभ संप्रदाय ग्रंथोना माध्यम थी समाज अने संप्रदायना ज्ञान ने वर्तमान में विज्ञान थी जोड़ीने समझावा आप प्रयासरत रहो छो। श्री वेपरी सत्संग मंडल द्वारा आ श्रीमद भागवत सप्ताहनु आयोजन थयुं ते घणा हर्षनी वात छे। बधा वैष्णवोना साथ सहकारथी आ भव्य आयोजन थयुं अने श्री ठाकोरजीनी कृपाथी आ अवसर सफल रीते पूर्ण थयो छे ते जाणी घणी ज खुशी थाय छे। श्री पूर्णिमाबेन दोशीना अकथ प्रयत्नोथी अने एमनी प्रेरणाथी आ श्रीमद भागवत कथानुं आयोजन थयुं
તે માટે શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળ વતી એમનો આભાર માનું છું. શ્રી પૂર્ણિમાબેન હરસુખભાઈ દોશી પરિવાર અન્નકૂટ મહોત્સવના સહભાગી બન્યા તે શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી જ સંભવ બન્યું છે. ઠાકોરજી એમને આવા સારા કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપે અને કૃપા વરસાવે એ જ પ્રાર્થના. શ્રી દિલીપભાઈ અને સવિતાબેનની પૂરેપૂરી મહેનતના લીધે આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું સફળ આયોજન થયું છે. તેઓ બંનેએ રાત દિવસ જોયા વગર પહેલેથી છેલ્લે સુધી સુંદર આયોજન કર્યું છે અને આ મહાયજ્ઞના સહભાગી બન્યા છે. તેઓ બંનેને અમારા શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળ તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રી વેપરી સત્સંગ મંડળ 26 વર્ષથી કાર્યરત છે. પહેલાં બંસી ભજનાવલી ભાગ 1 બહાર પાડી, ત્યારબાદ 2005માં પુષ્ટિ સુધા ભજનની બુક પૂર્ણિમાબેન તરફથી આપવામાં આવી હતી. હમણાં 2018માં શ્રી પૂર્ણિમાબેન તરફથી બંસી ભજનાવલી ભાગ 2 સર્વે વૈષ્ણવ બહેનોને આપવામાં આવી હતી. આ રીતે મંડળમાં બધા જ બહેનો વ્યવસ્થિત રીતે ભજન ગાતા શીખે અને એ જ વેપરી મંડળની ઈચ્છા છે. બધા મળીને સત્સંગ કરીએ અને શ્રી ઠાકોરજીને હૃદયમાં પધરાવીએ. શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી શ્યામ સુંદર, શ્રી યમને મહારાણીજી અને શ્રી વલ્લભને અમારી એક જ પ્રાર્થના છે કે અમને સદા એમના શરણમાં રહેવા દે અને ભક્તિનું ભાથું ભરવા દે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે માળા પેરામણી માટે સર્વે વૈષ્ણવ અહીં પધારે. હું નામ બોલું છું. મહેન્દ્રજી બિહાની, શોભનાબેન શાહ, રાજુભાઈ નથવાણી, પ્રતિમાબેન દક્ષિણી, ગોપાલદાસજી જમવર, મહેન્દ્રભાઈજી રાઠીજી, હા, તુલસીબેન સુધા, તખ્તસિંહજી મોહતા, મીનાબેન રાયરેલિયા, સોરી, हेलो, ઉમાબેન સુધા, पोथी के ऊपर द्रव्य मत रहने देना, नीचे उतार दिया नीचे मत, भागवत जी पे नहीं, भगवान के सिर पे तो नहीं, चरण में। जिसका हो गया देना, दोनों देने का। दोनों जने आ जाइए, दोनों ना।
આમ થઈને લઈ જાઓ. नाम बोलना बोले, नाम बोल दो बोले। अरे, हेलो. इसका बोली महेंद्र सिंह जी मोता, राधे श्याम जी बिसानी, दीपाली मोता, दीपाली मोता और एक कोई खुशाल सिंह जी जवर, खुशाल चंद जी जवर, स्कूल के प्रेसिडेंट हो गए कि अभी बाकी में? पुष्पाबेन फोमरा, विजयश्री फोमरा, इधर आ जाइए।
आई जी मारी कामरिया री रेख जी रंग रसिया बोलो आवो नी पधारो नी मारे देश जी पिया प्यारी रढोला आवो नी पधारो नी मारे देश। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री बाल कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम् हय्यङ्गमेन प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपम् सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतेश्च गोकुलपते श्रीगोकुले श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्त्यः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरः
स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन। आप सबको भगवद स्मरण, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम दामोदर लीला के बाद सीधे सीधे गोवर्धन लीला की यात्रा हमने की थी। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 10वें श्लोक में नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की। दामोदरो भक्तवस्य वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। भगवान ने एक बहुत अच्छी दृष्टि दी। जब श्रीमद् गोकुल में बहुत उत्पात होने लग गया, रोज कोई न कोई असुर आ जाते थे, मतलब कि भगवान ने भक्ति की अवस्था को ऊर्ध्वगामी बनाया। ऊर्ध्वगामी मतलब अपने भक्तों को श्रीमद् गोकुल से वृंदावन की यात्रा करवाई। श्रीमद् गोकुल जो है वो भगवान की बाल लीला है, और जो श्री वृंदावन है वो भगवान की पौगंड मतलब माधुर्य लीला है। हमारे भक्ति की शुरुआत हो रही है वात्सल्य भाव से। जैसे हम युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, प्रौढ़ावस्था से हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने श्रीमद् गोकुल से श्री वृंदावन की यात्रा करवाई है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया, राजन, बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आप पुष्टि मार्ग में ये मंगलाचरण लगभग लोग बोलते होते हैं, नहीं भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय 10वें स्कंद के 18वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक है, मतलब कि वेणुगीत का ये प्रथम श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुखदेव जी ने किया और क्या बताया कि बरहा पीडम, बरहा बोलते हैं वो मोर पंख को, बरहा वतन सब प्रियम, जो भगवान ने मोर पंख धारण किया है उसे बरहा बोलते हैं।
बरहा पीडम नटवर बपु। बपु मतलब शरीर, नटवर मतलब नट के समान, हाथ और पैर दोनों को टेढ़ा करके। नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेल के फूल को लगाया, कनेर का फूल। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, वैजयंती की माला धारण की है। रंध्राण वेणु, 3 प्रकार है, एक वेणु है, एक मुरली है और एक बांसुरी है। तीनों में भेद है, तीनों एक जैसे नहीं है। अपन को ऐसा लगता है कि भाई वेणु मतलब मुरली मतलब बांसुरी, नहीं। प्रातः काल जो भगवान अपने साथ रखते हैं उसका नाम वेणु है। मध्याह्न काल में जब भगवान कटी में कमर में खोस करके रखते हैं उसका नाम है मुरली। और संध्या काल में जब भगवान अपने पास उसी वाद्य यंत्र को रखते हैं तब उसका नाम है बांसुरी। सुखदेव जी कहते हैं कि रंध्राण वेणु, वेणु को भगवान ने कहां धारण किया है? अपने मुख पे। रंध्राण, रंध्र मतलब छिद्र, तो वेणु में कितने छिद्र हैं? 7 छिद्र हैं। और भी डीप में जाकर समझोगे तो प्रथम छिद्र से भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है, दूसरे छिद्र से भगवान का वीर्य प्रकट होता है, तीसरे छिद्र से भगवान का यश प्रकट होता है, चौथे छिद्र से भगवान के श्री गुण प्रकट होते हैं, पांचवें छिद्र से भगवान का ज्ञान प्रकट होता है, छठे छिद्र से भगवान का वैराग्य प्रकट होता है और 7वें छिद्र से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। सरल अर्थों में समझने जाएं तो प्रथम छिद्र से जो आवाज निकलती है वो सिर्फ स्वामिनी जी को सुनाई पड़ती है, राधा रानी को। यह भेद है। वेणु के दूसरे छिद्र से जो आवाज निकलती है वो श्री चंद्रावली जी को सुनाई पड़ती है, भगवान की द्वितीय सखी चंद्रावली। वेणु के तीसरे छिद्र से जब वो आवाज निकलती है तब उसको राधा सहचरी जी श्रवण करती हैं। वेणु के चौथे छिद्र से जब आवाज प्रकट होती है उसको सिर्फ और सिर्फ यमुना जी श्रवण करती हैं। वेणु के 5वें छिद्र से जो आवाज नाद प्रकट होता है, ब्रज में रहने वाले सारे ब्रजवासी उसे श्रवण करते हैं, ब्रज भक्त श्रवण करते हैं। 6ठे छिद्र से जो नाद प्रकट होता है ब्रज में रहने वाले सब पशु पक्षी श्रवण करते हैं। और 7वें छिद्र से जो नाद प्रकट होता है वो यमुना जी में रहने वाले जो जलचर हैं, जलीय जीव हैं, वो श्रवण करते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा रंध्राण वेणु, और क्या? अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर, गोपियों के अंतःकरण तक उस वेणु की आवाज पहुंची। और परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि गोपियां स्वयं भगवान के पास आई, आकर के भगवान को कहा कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। भगवान ने गोपियों को अक्षयी फल का दान किया है। देखो, मैं सुबोधनी जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी रुचि थी, बाकी मैं बहुत डरता हूं सुबोधनी जी से, क्योंकि उसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्या कहा? अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा। अरे सुबोधनी जी की बात तो छोड़ो, श्रीमद् भागवती अगर ओरिजिनल सुनाने लग गए, शुद्ध शैली में सुनाने लग गए तो आधे लोग सो जाओगे।
अगर जब तक हम उसमें छौंक ना लगाएं, थोड़ा बघार ना लगाएं, तब तक क्षमता नहीं कि अपन जो है। पहले कहते कि सूर खवैया घी को छाछ कहाँ भावे, पर अपन खवैया है छाछ के घी कहाँ पचे। तो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। पर मुझे आनंद आता है कि आप बहुत शांति से श्रवण करते हैं, बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम इतनी एकाग्रता, इतनी जिज्ञासा तो है आप सब में कि आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अक्षण मतलब गोपियों ने भगवान से कहा कि मुझे वो फल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फल दो जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। वैसी कौन सी चीज है? क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो वास्तव में नश्वर हैं, इसे स्वीकार कीजिए। संसार के सारे पदार्थ एक न एक दिन समय आने पे नश्वर हैं। ये शरीर भी नश्वर है। तो फिर अनिश्वर क्या है? जो नश्वर नहीं है वो क्या है? वो साक्षात ईश्वर है। तो गोपियों ने कहा कि मुझे अक्षय फल की प्राप्ति कराओ। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। तब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने भी बड़ी अच्छी बात कही। तब भगवान ने कहा कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वेणु गीत के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इत्थम शरस्वस्थ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम शगो गोपाल को च्युता। क्या कहा? बड़े अद्भुत मधुर संवाद है। शरद ऋतु में जब सारे जल, सरोवर, वातावरण, प्रकृति जब सब स्वच्छ हो जाए, तब रात्रि के समय में जंगल में बैठ करके भगवान ने वेणुनाद किया और राधा रानी भगवान के पास पहुंची। राधा रानी ने आज पहली बार फरियाद की है कृष्ण से। कृष्ण से कहा है कि तुम ये वेणु बजाना बंद कर लो। लखोटी तब देहूं घट भर देहूं, हमहूं बड़े मेहरन की बेटी, हम तो सो ना ही डरे हैं। अपने आष्ट सखाओं की कीर्तन में एक बड़ा बढ़िया कीर्तन आता है सूरदास जी का। पंडित जसराज जी ने गाया भी है इसको। लखोटी तब दे, राग गौरी, घट भर दे, लखोटी तब दे, हम हूँ बड़े मेहरा की बेटी, लखोटी तब दे, घट भर दे। वो गोपी जा रही थी, कृष्ण ने उसकी मटकी को फोड़ दी। राधा रानी ने बांसुरी छीन ली भगवान की। जब बांसुरी छीन ली, भगवान बेचैन हो गए कि अब बांसुरी के बिना मैं रहूंगा कैसे। अब राधा रानी कहती है लखोटी तब दे हो, घट भर दे हो। भगवान ने कहा मैं बहुत बड़े नंदराय का बेटा हूं, ये तो सोच मैं राजा का पुत्र हूं। तब कहती है राधा रानी कि हम हूं बड़े मेहरा की बेटी। अरे कन्हैया, मैं भी बहुत बड़े मेहर की बेटी हूं। मेरे पिता का भी नाम वृषभान है। हम तुमसे ना ही डरे हैं। यह मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूं। यहां तो भक्ति का संवाद था। भगवान झुक गए। भगवान ने मटकी भर दी।
राधा रानी ने बांसुरी लौटा दी। भगवान बांसुरी लेकर के जंगल में आ गए और अब बजाना शुरू किया। जब बांसुरी भगवान ने बजाया तो बांसुरी बजाते ही ये जो सारी लीला हो रही है ना, ये आप सब गिरिराज जी जाते हो, ये गिरिराज जी के आसपास की लीला है। कृष्ण दौड़ते दौड़ते गिरिराज जी की कंदरा में चले गए और कंदरा में जाने के बाद एक जगह पे बैठ गए और बैठ करके वेणुनाद किया तो चतुर्भुज दास जी ने कीर्तन किए, रैन निवास कियो पिया प्यारी। इस प्रकार से वेणु गीत के संवाद, कालियनाग का उद्धार, दावा अग्निपान, ये जितने भी असुर हैं, मैंने कल भी कही थी कि भगवान की रुचि असुरों को मारने में बिल्कुल नहीं है। भगवान ये सारी लीला इसलिए कर रहे हैं कि आपके और मेरे अंदर जितनी आसुरी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भगवान नष्ट कर रहे हैं विशुद्ध भक्ति का दान करने के लिए, कि एक बार विशुद्ध प्रेम जीव को परमात्मा के साथ हो जाए। एक बार कवि कालिदास जी एक जंगल से गुजर रहे थे। कालिदास जी ने देखा कि एक पक्षी एक टक चांद को देख रही थी, बिल्कुल एक टक होकर के, एकाग्र होकर के वो पक्षी निरंतर रात्रि के समय में चांद को देखती जा रही थी। जब एकाग्र होकर चांद को देख रही थी, कालिदास ने प्रश्न किया कि अरे चकोरी, तो इस प्रकार से एक टक आकाश में क्यों देख रही है? चकोरी कहती है कि मैं चांद से प्रेम करती हूं ना, इसलिए मैं चांद को एक टक देखती हूं, क्योंकि चांद से मुझे प्रेम है। कालिदास को ताज्जुब हुआ कि एक पक्षी होकर के इस प्रकार से चांद से प्रेम करती है। पहले तो समझाया कि देख, प्रेम करना है तो अपनी जाति में किसी पक्षी से कर, चांद से प्रेम करके क्या मिलेगा तुमको? न कभी चांद तक तू पहुंच सकेगी, न चांद से तुम्हारी मुलाकात होगी, न चांद से तुम्हारा मिलना होगा, फिर चांद से प्रेम क्यों करना? वो मानने को तैयार नहीं थी। अंत में कालिदास जी ने पूछा कि ऐसे ही चांद से तुम कब तक प्रेम करती रहेगी? चकोरी कहती है कि बस ऐसे ही चांद को देखती देखती एक दिन गुजर जाऊंगी, एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले तुम्हारे जैसे कितने चकोरी चांद को प्रेम करते हैं? बोले बहुत चकोरी करती है चांद को प्रेम। कुछ दिनों तक चांद को एक टक देखती है, देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब से आकाश में चांद निकलता है तब से देखना शुरू करती है, और जब तक चांद अस्त ना हो जाए तब तक एक टक देखती देखती फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कालिदास ने बहुत समझाया कि तुम्हारा चांद से कभी मिलना नहीं होगा, तुम अपने प्रेम को कभी पा नहीं सकती हो। प्रेम को पाना तो दूर, चांद तक कभी जा भी ना सकेगी, चांद से तुम्हारा कभी मिलना नहीं होगा, इसलिए छोड़ दे। बहुत समझाया। चकोरी बोलती है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं जिसे प्रेम करती हूं एक दिन पा लूंगी, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगी, चांद से मेरी मुलाकात भी होगी और चांद के पास मैं जाऊंगी भी। एक पक्षी के हिम्मत को देख करके कालिदास की जिज्ञासा बढ़ गई। महाकवि कालिदास दूसरा प्रश्न किया कि ठीक है, मुझे इतना बता दे कि तू चांद तक कैसे पहुंचेगी? चकोरी कहती है कि थोड़ा सा सहयोग मुझे आपका चाहिए, कि जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे शरीर को जला देना करके मेरा अग्नि संस्कार करना।
कालिदास ने कहा तब तो तू समाप्त हो गई, फिर चांद को कब मिलेगी? बोले प्रेम वो नहीं है कि एक जन्म में ही पाले। अगर आप में से किसी को आज ठाकुर जी से प्रेम है ना, तो इस जन्म के कर्म नहीं है आपके पिछले हजारों वर्षों के कर्म का पुण्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। इस चीज को हृदय में लिख लेना। 125 करोड़ की बस्ती में चंद लोग ही परमात्मा से प्रेम कर पाते हैं। भगवान के मंदिर में जाने वालों की कमी नहीं है, पर वो अपनी स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए जाते हैं। निष्काम भाव से सिर्फ भगवान को देखने के लिए तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। चकोरी ने कालिदास को जवाब दिया कि पाने के लिए मैं प्रेम नहीं करती हूं, पर मुझे विश्वास है मैं जिसे प्रेम करती हूं एक दिन पा लूंगी। तो तू तो जल करके भस्म हो जाएगी, फिर कब पहुंचेगी अपने प्रीतम के पास, अपने प्रिय के पास? तब जाकर के चकोरी ने जो जवाब दिया है वह हर मनुष्य को स्तब्ध कर देने लायक है। चकोरी के उस जवाब से आपको मालूम पड़ेगा, इंसान तो दूर, पशु पक्षी भी जब किसी से प्रेम करते हैं वो प्रेम भी बड़ा अद्वितीय प्रेम होता है। चकोरी ने कहा कि जब तुम मेरे शरीर को जला दोगे मैं भस्म हो जाऊंगी, राख बन जाऊंगी, और राख बन करके उसके कान कान में से मैं चांद को प्रेम करती रहूंगी। मैं चांद को याद करती रहूंगी, मेरा रोम रोम उसे याद करेगा, मैं रोम रोम से प्रेम करती रहूंगी। और तब तक प्रेम करूंगी जब तक इस पृथ्वी पे मेरे जले हुए शरीर के राख का अवशिष्ट रहेगा। राख में से जब मिट्टी हो जाऊंगी उसके बाद भी प्रेम करूंगी। कालिदास, भगवान महादेव का एक नियम है, जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भगवान की कथा होने वाली होती है, जहां भगवान की कथा हो जाती है, जहां कोई प्रेमी भक्त होता है, जहां कोई प्रेमी साधु होता है, जहां कोई प्रेमी महात्मा होते हैं, जहां कोई प्रेमी पशु होता है, जहां कोई प्रेमी पक्षी होता है, उस भूमि को प्रणाम करने के लिए शिव एक न एक दिन अवश्य जाते हैं। जब महादेव शिव को मालूम पड़ेगा इस जंगल में जरूर आएंगे, इस भूमि पे आकर के रात्रि में भगवान महादेव विश्राम करेंगे, और विश्राम करने के बाद सुबह सुबह जब स्नान करेंगे तब भोले बाबा का नियम है, बड़ा सुंदर और अद्भुत नियम है। चिता भस्मा लेप गरल शमनम दे पटधरो कपाली भूत। તમને વધારે યાદ હશે, મને તો બહુ યાદ। चिता भस्मालेप गरल समनम दिक् पटधरो श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। एक दिन भोले बाबा मेरी इस कुटिया में जरूर आएंगे, और आने के बाद जब भोलेनाथ को भस्म की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे जले हुए शरीर का जो अवशिष्ट होगा, राख होगा, उसको लेकर, और मेरे भोलेनाथ जैसे ही मस्तक पे उस भस्म को धारण करेंगे, शिव के मस्तक पे चंद्रमा है, उसी समय मैं चांद को मिल लूंगी, चांद से मेरी मुलाकात हो जाएगी, मेरा प्रेम पूर्ण हो जाएगा, मेरा प्रेम यात्रा तक पहुंच जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा, मेरा प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। एक चींटी भी जब जन्म लेती है ना साहब, एक मधुमक्खी का भी जन्म होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं किसी फूल पे जाकर बैठूं और वो फूल श्री बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाए, ताकि मैं प्रभु के चरणों में मंदिर में पहुंच जाऊं। एक फूल की भी ऐसी इच्छा होती है इस प्रकृति में। और सबसे अगर दुर्भागी कोई इस पृथ्वी में हो, सबसे सद्भागी भी मनुष्य है और सबसे दुर्भागी भी मनुष्य है। आज गोपियों ने भी भगवान से इतना ही कहा कि बस
अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। कि हे ईश्वर, हे कन्हैया, मेरे अंदर जो आसुरी धर्म है, जिनके कारण मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं अथवा तो मैं नहीं पहुंच रही हूं, उन्हें आप दूर करें। क्या मांगा? बहुत बढ़िया मांगा कि जिनके कारण मैं आप तक नहीं पहुंच रही हूं उन्हें आप दूर कर दें। तब जाकर के भगवान ने सबसे पहले धर्म और अधर्म में पहचानने के लिए, पहचान करने के लिए वत्सासुर का उद्धार किया। कल मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई थी। वत्सासुर, गाय के रूप में अधर्म का प्रवेश। तो सबसे पहले तो धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आप विवेक संपन्न बने। मैं एक व्यंग के माध्यम से आपको समझाता हूं, आप शायद समझ जाएंगे। व्यंग तो किसी और पे है, पर आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक कवि अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। सामने से कोई छोटा बच्चा गुजरता हुआ दिखा। बच्चे को कवि ने बुलाया, 10 रुपए का नोट दिया और नोट देकर बोला कि बेटा जा, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आ, एक मैं खा लूंगा, एक तू खा लेना। बच्चा पहुंच गया और एक कुल्फी लाकर खाते खाते अंकल के पास पहुंचा। बोला, अंकल, उसके पास 5 वाली कुल्फी नहीं थी तो मैंने 10 की कुल्फी ले ली, आप कभी और खा लेना। अब वो महाशय जो है वो कहने लगे कि बड़ा शैतान है तू, क्यों कभी चाय वाय बेचता था क्या? उसने बोला, नहीं अंकल, मैं पढ़ता हूं। देखो ये राजनीतिक व्यंग है। बोले कोई बात नहीं, 10 रुपए की जीएसटी और पेटीएम तो हो गया मेरा। अब ये बता कि तू चाय वाय तो नहीं बेचता है? उसने कहा कि नहीं अंकल, पढ़ता हूं। बोले पढ़ने की क्या जरूरत है अब? है? पढ़कर क्या करना है? बोला पढ़े बिना करूंगा क्या? बोले बिना पढ़े एक काम कर, कोई बाबा साधु बन जा, कोई डेरा खोल ले, 1-2 आश्रम बना ले, कुछ बजाना बजाना सीख जा, कुछ भजन गाना सीख जा, लोगों को नचाना सीख जा, या फिर पॉलिटिक्स में पहुंच जा। उसने कहा कि अंकल, उसने जो जवाब दिया कि अंकल, बाकी सब चीज के लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन बाबा साधु बनने के लिए तो अज्ञानी बनना पड़ता है। अज्ञानी बने बिना बाबा साधु भी बनना मुश्किल है। क्यों? बाकी जगह आप अपने दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? पर धर्म के मामले में हम इतने अज्ञानी क्यों हैं? क्या जवाब दिया उसने कि इसके लिए तो अज्ञानी बनना पड़ता है। पढ़ लिख करके जब लोग अज्ञान के पथ पे चलते हैं तो सबसे पहले कृष्ण ने लीला में प्रवेश करते हुए सावधान किया कि वत्सासुर को पहचानो। वत्सासुर का कैरेक्टर क्या है श्रीमद् भागवत में? कि वत्सासुर को मालूम था कि कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, तो वो राक्षस कृष्ण को मारने के लिए गाय के वेश में कृष्ण के पास पहुंचा। भारत में भी कुछ लोगों को मालूम है कि भारत की जनता को धर्म बहुत प्रिय है। बाकी आप समझ सकते हो, मैं मुंह नहीं गंदा करूंगा। और कृष्ण ने वहां पे क्या डिसीजन लिया? कृष्ण ने उसको पहचान लिया, और पहचानने के बाद कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। कृष्ण ने उसको मार दिया। गांव में लोगों ने हवा फैलाई, ये तो हत्यारा है, इसने गौ हत्या की। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। तो सबसे पहले वत्सासुर की हत्या, और वत्सासुर के बाद बकासुर, कौआ या बगुला जो बोलो, उसके 2 चोंच है। एक में लोभ का निवास है, एक में मोह का निवास है।
ध्यान रखना, संसार का लोभ होना खतरनाक नहीं है, जरूरी है। संसार में मोह होना खतरनाक नहीं है, ये गलत है कि खतरनाक है। नहीं, बिना लोभ कोई जी ही नहीं सकता, बिना मोह कोई जी ही नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पकोड़ा खाने का बहुत शौक था। विवेकानंद के गुरु, पकोड़ा खाने का बहुत शौक था। लोग निंदा करते कि साधु संतों को व्यसन नहीं होना चाहिए, व्यसनानि संति बहुनी चेत विद्यायाम व्यसनम व हरिपाद व्यसनम। लोग निंदा करते हैं कि व्यसन छोड़ दो, व्यसन मुक्त हो जाओ। लेकिन स्वामी विवेकानंद के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पकोड़े की आदत लग गई। पत्नी शारदा जी ने समझाया कि महाराज अब तो छोड़ दो। विवेकानंद जी ने कहा कि अब छोड़ दो, ये आदत अच्छी नहीं है। तब एक दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिस दिन मैं पकोड़ा खाना छोड़ दूं, समझ लेना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही खाना छोड़ा उसके 7 दिन के बाद चले गए। क्योंकि मोह के बिना शरीर को टिकाना भी असंभव है। देखते नहीं हो, निराश लोग, जीवन से हारे हुए लोग सुसाइड कर लेते हैं। और ये पश्चिम के देशों में ज्यादा है, क्योंकि वो भाग्यवादी नहीं है। एटलीस्ट हम भाग्यवादी हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम भाग्यवादी हैं। तो लोभ और मोह का जो प्रमाण है ना, उस प्रमाण को ध्यान में रखना है। क्योंकि लोभ अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो ध्यान रखोगे कि हम धीरे धीरे धर्म से दूर हो जाएंगे। संसार में हमारी लोभ वृत्ति इतनी बढ़ती चली जाएगी कि भजन छूट जाएगा। और जब लोभ आए तो जिसको हमने प्राप्त किया उसके प्रति मोह की भी उत्पत्ति होगी। अब हम कमल के फूल तो हैं नहीं कि कीचड़ में खिल के भी कीचड़ से ऊपर रह सकें। ये सब कहने और सुनने में ठीक लगता है, पर प्रैक्टिकल जीवन में ये मुश्किल है। तो भगवान ने क्या किया कि भक्तों में से लोभ और मोह को दूर किया, बगुला को मार करके। और उसके बाद कालिया नाग का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार। ये सारे जो असुर हैं, जैसे कालिया नाग है तो कालिया नाग का जो फन है वो 5 फन है। वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कालिया नाग की 10 पत्नी हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो भगवान ने क्या किया कि कालिया नाग को नाथा है, मारा नहीं है। बस ये समझना खास। कालिया नाग को कृष्ण ने मारा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, बस एक लाइन में समझो कि हमारे अंदर की जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, उसको कृष्ण ने नष्ट होने से बचा करके उन इच्छाओं को डाइवर्ट किया है, संसार से थोड़ा सा हटा करके भगवान की ओर लगवाया है। जो हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। जैसे अपने यहाँ एक 252 में एक बड़ी अच्छी वार्ता जी है। एक सन्यासी और एक गृहस्थ दोनों गोसाई जी के पास पहुंचे कि हमको ठाकुर जी पधरा दो, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है। गोसाई जी ने कहा बैठो। दोनों बैठ गए। गोसाई जी ने पूछी कि तुमको कोई शौक है? एक ने कही कि मैं तो सन्यासी हूं, मोको तो कछु शौक है नहीं। दूसरे को पूछी कि तोकू शौक है? बोले कि मोको खाए को बहुत शौक है। गोसाई जी ने कही कि ऐसो करियो कि पहले ठाकुर जी को भोग दरियो फिर खा लियो। दूसरों कछु शौक? बोले पैरवे को बहुत शौक है। बोले ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र दरियो, वहां में सु पैर लीजो। और कछु शौक तो पान खाए को बहुत शौक है। गोसाई जी ने कही कि बीरा ठाकुर जी को दरियो, वहां के बाद ले लियो। बोले और? बोले तैयार होए को बहुत शौक है।
गोसाई जी ने कही कि सुंदर सुंदर ठाकुर को श्रृंगार कराओ, खुद भी श्रृंगार करो, आनंद में रहो। और ठाकुर जी लाके वाको पधराई दिए। दूसरे को पूछी कि तो को कछु शौक, बोले मैं तो सन्यासी हूं, मैंने तो सब कछु छोड़ दियो है। गोसाई जी ने कही कि ठीक है, कोई बात नहीं। एक को ठाकुर जी पधरा दिए, दूसरे को ठाकुर जी नहीं पधराई। उसने कहा कि महाराज, इस संसारी आदमी, शौकीन आदमी, घर संसार में मस्त आदमी, संसार में रचे पचे हुए आदमी को आपने ठाकुर जी पधराई, और मैं विरक्त हूं, सन्यासी हूं, सब छोड़ छाड़ के आया, तब आपने हमको ठाकुर नहीं पधराई। गोसाई जी ने कही कि तुझे कोई शौक ही नहीं है तो तू ठाकुर की सेवा कैसे करेगा? कुछ इच्छा शक्ति अपने अंदर हो तो उस इच्छा शक्ति को अपन डाइवर्ट करें। जिसकी नष्टि हो गई है उसका क्या हो सकता है? बस कालिया नाग में यही चीज है। भगवान ने क्या किया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबको लेकर के 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, सबको भगवद सन्निधान में ले जा करके और भगवद रस से जोड़ा है श्री गोसाई जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण ने। उसके बाद है धेनुकासुर का उद्धार। धेनुकासुर जो है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण असुर है। वह है देहाध्यास। जो आलस्य है ना हमारे अंदर, उसी का नाम है धेनुकासुर। जैसे सुबह सुबह अपन उठ जाएं, आलस्य आलस में 10-11 बजा दे में, धीरे 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 धीरे, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर बिस्तर, थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर बिस्तर, फिर एक चाय की चुस्की। यही है धेनुकासुर। धेनुकासुर का मतलब होता है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से संसार में आप इस प्रकार से उलझ जाते हो कि परम फल से आपकी दूरी हो जाती है, परमात्मा से आपकी दूरी हो जाती है। तो धेनुकासुर को कृष्ण ने नहीं मारा, बलदेव जी के हाथ से मरवाया। बलदेव जी क्या है? बलदेव जी का नाम है शंकर्षण। शंकर्षण मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। शंकर्षण का मतलब होता है कि कृष्ण की जो छटा है, कृष्ण का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का झटका बलदेव जी में है। कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का कुछ अंश, कुछ झटका बलदेव जी में है। उसी प्रकार से जो भगवदीय होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भी संकर्षण कहलाते हैं। हमारे पुराने वैष्णव जिनको सेवा करते करते बहुत वर्ष हो गया, जो अष्टयाम ठाकुर की सेवा करे, रात दिन भगवत चर्चा करे, रात दिन भगवत नाम ले, उसे हमारे यहाँ संकर्षण कहा जाता है। એટલે કહેવાય છે કે વડીલોનું સંગ કરો, ભગવદીયનું સંગ કરો, ભગવદીય પાસે જાઓ, અને જો ભગવદીય ન મળે તો પછી 84-252 જેવા ભગવદીય અષ્ટસખા જેવા ભગવદીયના ચરિત્રનું વાંચન કરો, भक्तों के चरित्र को पढ़ो। तो भक्तों के सत्संग से ही हमारे अंदर रहे हुए धेनुकासुर का वध होता है।